जब छोटी थी, सो आई वाज मोर लाइक अ टॉमबॉय. Okay. ओके, तो बैठने का ढंग नहीं होता था, कैसे भी बैठ जाती थी पसर के. सो आई वाज आस्क्ड टू बिहेव अ सर्टेन वे, Sit like a girl. सिट लाइक अ गर्ल. लड़कियों के जैसे बिहेव करो, लड़कियों के जैसे कपड़े पहनो. ये क्या पहना है, कैसे चलती हो तुम, यू नो. आई स्लाउच व्हेन आई वॉक. सो ये क्या है, ये कैसे चल रही हो, अच्छे से चला करो, हाइट है, बॉडी है, सब है. देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर यू आर आस्क्ड टू बी अ सर्टेन वे, बिहेव अ सर्टेन वे, सिट अ सर्टेन वे, ईट अ सर्टेन वे. सो इसे ग्रूमिंग बोलते हैं. जिसे ग्रूमिंग बोलते हैं. करेक्ट. ये नया फैंसी वर्ड है फॉर दैट. एटिकेट्स. Etiquettes. ये हमें मिस इंडिया में सिखाया था, आपको पता है? I'm sure I was actually coming to that. Walk a certain way, sit a certain way. You've been a part of beauty pageants, तो उसमें तो I'm sure emphasis काफी रहा होगा इन चीजों पर. जब पहले ब्यूटी पैजेंट किया था ना, तब समझ में नहीं आ रहा था कि सिखाना क्या चाहते हैं. आई वॉज लाइक 14-15, ओके, इन माई टीन. फिर जब मैं मिस इंडिया गई, वहाँ पे मेरा चेंज हुआ. लाइक आई रियली ग्रूम माई सेल्फ, आई रियली टुक एन इंटरेस्ट ऑफ चेंजिंग माई सेल्फ. The common perception about beauty pageants is कि emphasis होता है only on how you look. Okay, emphasis होता है there are certain beauty standards that you are required to meet if you want to be a part of a beauty pageant or if you want to win a beauty pageant. How true or false is that? Beauty is just not looks. It's just not looks. It is everything. For me, I see a pageant girl or a pageant winner or a Miss India or a Miss World. The moment that Miss World or a Miss India walks in, everybody should be like, who is she? The aura. The aura should have it all. You see, Shushmita Sen, if today she walks in, people will be like, wow, she still has it. Priyanka Chopra. You name it, all the Miss World. But lately, मुझे ऐसा लगता है, lately, the standard of beauty pageant have fallen down, I feel. Why do you say that? पहले ना beauty pageant की जो we used to die to see who's the Miss India, who's the same. Miss World. Yeah. आज की डेट में वो रहा नहीं है. वो क्या मैं बोलूँ, वो क्यूरोसिटी रही नहीं है, वो एक्साइटमेंट रहा नहीं है कि यार कौन है. लाइक Yeah, and मुझे याद है मैं I would go back मैं videos देखती थी यार on the kind of questions that are asked and I would always be excited to see कि अच्छा इसका response क्या होने वाला है, what are they going to say. अभी मुझे ना एकदम, अभी मैं कुछ देखती हूँ, स्निपेट्स देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, and I wonder and I'm like कि is she trying to be something or is she like that? Are you trying to fit into the society or are you the way you are? You think authenticity is Yeah, I missing. feel that authenticity is missing. I feel that naturalness is gone. I feel there are plenty of things. मुझे ऐसा लगता है आज की फेक वर्ल्ड में लोग फेक बन रहे हैं. वो नेचुरल ब्यूटी कहाँ गई? Whether it's face, whether it's mind, whether it's anything. Where is the naturalness of emotions? There's so many things, yeah. Also like TV fame, मुझे ऐसा लगता है TV fame is something else यार. It's so special, right? You were a part of. See, I'll tell you again. Appreciation. Remember, हम starting में मेरे report card पे बात कर रहे थे. Appreciation, मैंने बोला कि मुझे कभी वो appreciation नहीं मिला. मैंने TV में इतना काम किया है ना, मुझे वो कभी appreciation नहीं मिला. मुझे मेरा वो report card में ना कभी वो मुझे good, excellent वो कभी नहीं मिला, जो मुझे Big Boss में मिला. Big Boss के बाद वो चीज़ें मेरी लाइफ में आई, वो recognition आए. अगर आप देखोगे तो मैं काम तो 2009 से कर रही हूँ. But like today, if you know me just because of Big Boss, right? So that recognition, that appreciation, Big Boss gave me. Yeah. Then people started digging up, oh, she's done that, oh, she's done this, oh, she's... उसके पहले I was a nobody. Yeah, but I think this is also the flip side of being in the entertainment industry, right? Like आप काम करते जाओ, आपको पता नहीं आपको वो fame मिलेगा कब. And also fame भी बहुत short lived होता है, right? बहुत ही short span of time का होता है. But आज मैं विनर हूँ, कल कोई और विनर बन जाएगा, कल लोग उसे पूछेंगे, मुझे कोई नहीं पूछेगा. सो दिस इज अ वेरी, ये इंडस्ट्री जो है ना, ये बहुत ही, इसीलिए मैं, फॉर मी आई एम लाइक स्लो एंड स्टेडी टर्टल, द बेस्ट विंस द रेस.
Have you felt any pressure to look a certain way? They have to be on screen. नॉट रियली, मेरे साथ तो वो कभी नहीं हुआ. मेरा डॉग बाइट एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं अपने आप को लेके थोड़ी सी कॉशियस हो गई थी कि ओ गॉड, हाउ विल आई लुक. एंड आई थिंक मेरा ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे मैं आज भी उसको लेके कॉशियस रहती हूँ. बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी. जो मेरा डॉग बाइट वाला इंसिडेंट हुआ था, एंड आई थिंक 1 साल के बाद मैं ना एक टीवी कमर्शियल शूट कर रही थी. तब कोविड का टाइम चल रहा था, कोविड वाले फेज़ में थे. ऑडिशन हम घर पे बना के भेजा था, एंड आई गॉट सिलेक्टेड. और बस ऑडिशन घर पे से भेजा, आई गॉट सिलेक्टेड. मैं सेट पे आती हूँ तो सुबह 7 बजे का कॉल टाइम था. आई वॉज वेयरिंग नो मेकअप. अब if I wear a lipstick, my lips are fine. But if I do not wear a lipstick, and at that time, 2021 minutes, the scars were very visible. Not that visible, but yeah, the abruptness of the lip was very this. आप बिलीव नहीं करोगे, वो डायरेक्टर मुझे ऐसा देख के कहता है कि अरे, like he started talking about my lips to the client. The client started talking to the director. कि अरे, उसका लिप्स में क्या प्रॉब्लम है? Like something. Then they called me. कि सना इधर आओ ना. तो मैंने बोला यस सर, बिकॉज वो दूर से देखा, दे वांटेड टू सी मी अप क्लोज. तो इधर मैं खड़ी हूँ, इधर डायरेक्टर और द क्लाइंट इज वाचिंग. एंड आई डोंट नो व्हाट कॉन्फिडेंस द डायरेक्टर हैड इट इन मी. ही सेड व्हाट हैपेंड हियर. आई सेड सर, आई जस्ट हैड एन एक्सीडेंट, बट इफ यू पुट अ लिप लाइनर एंड अ लिपस्टिक, इट विल हाइड, इट वोंट बी विजिबल. पक्का ना? आई सेड या. So I think he convinced the client that it's okay. मतलब अगर वो डायरेक्टर नहीं लेता, मेरी सपोर्ट नहीं करता, तो शायद वो लोग मुझे शूट से रिजेक्ट कर देते. कि अरे उसका लिप देखो. सो होता है कि अरे इट इज़ नॉट फाइन, ओ शी इज़ नॉट लाइक दिस, ओ शी इज़ नॉट लाइक दैट. बट देन नाउ आई एम लाइक कि तब मैं बहुत वीक थी, तब मैं रोई थी. यू नो, आई लेजिट क्राइड. आई सेड शिट, या आई क्राइड. मेरे को जब मैं रो ही नहीं रहूँगी, जब मुझे ये हुआ था ना, तो होल नाइट आई डिड नॉट क्राई. 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, आई डिड नॉट क्राई. आई थिंक ये अक्टूबर में मैंने एड शूट किया था, एंड मैं नवंबर में मैं फूट के रोई थी कि इसमें मेरी क्या गलती. करेक्ट. बिग बॉस में भी मुझे बहुत लोगों ने टीम करने की कोशिश की थी, बट देन आई वाज लाइक कि आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, बट दैट्स अ स्कार आई हैव इन माय हार्ट, यू नो. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस. एंड पता है, ये ऊपर से सिर्फ ऐसा लगेगा कि शायद हाँ यार बस एक स्कार की बात हो रही है, डॉग बाइट की तो बात हो रही है, बट यू नो इट्स रियली अबाउट owning your scars. And why it's difficult is because nobody makes you feel okay about these things. I totally agree, because मुझे रिजेक्शन मिली है. मुझे एक जगह से नहीं, 2 जगह से नहीं, 3 जगह से, बहुत जगह से रिजेक्शन मिली है. बट अभी मैं इस पर कोई चेंज नहीं कर सकती. सो आई थिंक आई ट्राई टू शो I am fighting battles. I am struggling with a lot of things, whether it's my health, whether it's issues with myself, or a lot of things. But what I see and what I want, I don't want anybody to pity. मेरे पे कोई pity मत करो. I'm a fighter. I'm a warrior. Absolutely, absolutely. Thank you for sharing this experience with me, with all of us. Big Boss के बारे में you've spoken a lot. You've shared a lot of about your experiences. But what is the most unexpected thing that happened with you in the Big Boss house? Because यार, I'm sure you've seen, इतने साल से चल रहा है ये शो. You've also mentioned कि आपको बहुत बार इसके लिए अप्रोच किया गया था, and then finally you said कि चलो let's take this leap. But what is the most unexpected thing that happened? Something that you didn't foresee, despite knowing कि शो का फॉर्मेट क्या होता है. मैं ना, मुझे जाने से पहले बहुत जन बोल रहे थे शो देख ले. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.